Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can write using my Gmail ID. Links are given in the description box. This is the series of SC Verma solution and we are going to solve question number 7 to 12 of Chapter 4, that is work, energy and power. For the first part of this video, you can click on the link given in the description box. Question number 7 says that the mass of a ball is double the mass of another ball B. Means अगर mass A, first ball का mass MA है, तो that is equal to twice MB. MB का वो twice है. Okay, let us see the solution. Mass of ball A, let it be MA. Mass of ball B, let it be MB. Velocity of ball A, VA. Velocity of ball B, let it be VB. Okay. Now it is given that mass of ball A is twice the mass of ball B. So इसकी velocity क्या हो जाएगी? उसके half हो जाएगी. उसका mass जो है double है अगर, तो velocity जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे बॉल बी की मास को. सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ए इज के ए 1/2 MAV². मीन्स जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 MV². अगेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल बी इज 1/2 MB इंटू VB². ठीक है, ये ए और बी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए. Now we have to calculate the ratio of kinetic energies of A to the kinetic energy of B. ठीक है, रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, KA is equal to 1/2 MA into VA². और इस MA की जगह पे, इस MA के जगह पे हम लोग इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, और VA² के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, VA की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो MA is equal to twice MB and its velocity will decrease by half, तो हो जाएगा VB/2². ठीक है, ये this 2 and this 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/4 VB² हो जाएगा. KA is equal to MB into 1/4 VB². अगेन 1/4 को 1/2 into 1/2 हम लोग लिख सकते हैं, 1/2 into MB into VB². and this is the kinetic energy of second ball. ये काइनेटिक एनर्जी है सेकेंड बॉल का. सो K is equal to KB 1/2 KB. So K/KB is equal to 1/2 and its ratio is 1:2. Question number 8. Calculate the increase in potential energy as a block of 2 kg is lifted up to 2 meter. ठीक है, let it be the block. एक ब्लॉक है 2 kg का और उस ब्लॉक को हम लोगों ने 2 मीटर ऊपर उठाया है. ओके, 2 मीटर उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज 2 मीटर. Solution, let us see the solution. Given that mass of the block is 2 kg and its height is 2 meter. When the block is at the ground, the initial potential energy is 0. जब वो ब्लॉक जो है ग्राउंड के ऊपर है तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है और उसको हम लोगों ने 2 मीटर हाइट तक उसे उठाया है. So let us calculate the potential energy. Potential energy की फॉर्मूला है हमारे पास mgh. m is the mass of the block. G we know that acceleration due to gravity and h is the height of the block. कितने हाइट पे हम लोगों ने उसे उठाया है. So 2 into 2 into 9.8. On calculating this we will get the value 39.2 joule. Question number 9. A ball of mass 0.5 kg is dropped from a height. ठीक है, एक बॉल हम लोगों ने लिया जिसका मास जो है दैट इज 0.5 kg. 0.5 kg के बॉल के मास को हम लोग किसी हाइट से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं. फाइंड द वर्क डन बाय इट्स वेट इन 1 सेकेंड आफ्टर द बॉल इज ड्रॉप. अब 1 सेकेंड के बाद जो है ये बॉल जो है जिसका मास 0.5 kg है वो कितना वर्क करेगा. गिवन दैट द मास ऑफ द बॉल इज 0.5 kg. So the work done by the uniform force in displacing an object
टू अ डिस्प्लेसमेंट d इज गिवन बाय वर्क डन हम लोग कितना लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। द फोर्स एक्ट ऑन द बॉल इज ड्यू टू इट्स ओन वेट, ठीक है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज मास इनटू ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमारा g का वैल्यू है। मास ऑफ द बॉल इज गिवन 0.5 इंटू 9.8, तो हम लोग इसको कैलकुलेट यहाँ पे कर लेंगे, मास इंटू acceleration due to gravity. Now using the formula second equation of motion, d is equal to ut plus 1 by 2 gt square. Here u is 0 क्योंकि इनिशियली जो बॉल जो है वो हमारा रुका हुआ है रेस्ट पोजीशन पे, तो u 0 हो जाएगा। d is equal to 1 by 2 g t square मीन्स एक सेकंड के बाद वो पूछा जा रहा है कि एक सेकंड के बाद उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, सो द डिस्प्लेसमेंट डन बाय बॉल इज g by 2. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉल आफ्टर 1 सेकंड, ठीक है, एक सेकंड के बाद जो है वर्क डन क्या होगा उस बॉल का। सो W इज इक्वल टू F इंटू डी, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज द मास ऑफ द बॉल, वेट ऑफ द बॉल, ओके, वेट ऑफ द बॉल इज मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 kg एंड g वी नो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8, और यहाँ पे d जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था यहाँ पे g by 2, अगेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ g 9.8 डिवाइडेड बाय 2, और इसको कैलकुलेट करने के बाद वी विल गेट द आंसर 24.01। thus the work done by its weight is 24.01। बुक में इसका आंसर जो है वो 24 दिया हुआ है ओनली, ठीक है, तो approximately we can say that the work done by the ball after 1 second is 24 joule. Question number 10. A ball of mass 1 kg is dropped from a height of 5 meter. Let it be one ball whose mass is 1 kg and it is dropped from the height of 5 meter. एक बॉल है जिसका मास जो है 1 kg है और उसको हम लोगों ने 5 मीटर की ऊंचाई से ड्रॉप किया। Now find the kinetic energy of the ball just before it reached the ground, and question number B is what is its speed at this instant. ठीक है, तो हम लोगों को find out करना है what is the speed and kinetic energy. So let us see the solution. The mass of the ball is 1 kg, height at which it was dropped is 5 meter, 5 मीटर की ऊंचाई से उसे हम लोगों ने ड्रॉप किया। Acceleration due to gravity is प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऊपर से नीचे फेंका है, ठीक है, जब हम लोग किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो नेगेटिव लेते हैं जी की वैल्यू, और जब हम लोग ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे हम लोग ऑपोजिट सॉल्व करेंगे, मींस क्वेश्चन नंबर बी को पहले सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर ए को बाद में, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी फर्स्ट, ओके। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, u यहाँ पे इनिशियली बॉल वाज एट रेस्ट, तो यहाँ पे u मेरा 0 हो जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड हाइट ऑफ द बॉल इज 5 मीटर, तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 मीटर रखा है। v स्क्वायर इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड, और इसको सॉल्व करने के बाद v स्क्वायर, जब स्क्वायर हम लोग आर्चिस के साइड लेकर के आएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, और सॉल्व करने के बाद वी विल गेट द आंसर 7√2 मीटर पर सेकेंड। Now putting this value in the formula of kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square, we will get the answer 49 joule. So the kinetic energy of this ball is 49 joule and its speed at that instant is 7√2 meter per second. Question number 11. A block is thrown upward with kinetic energy 1 joule. Let it be a block, ठीक है, इसको हम लोगों ने ऊपर की तरफ फेंका विथ काइनेटिक एनर्जी 1 जूल, 1 जूल की काइनेटिक एनर्जी से इसको हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं। इफ इट गोज अप टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ 1 मीटर, अगर ये मैक्सिमम हाइट जो है 1 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है, फाइंड द मास ऑफ द ब्लॉक, तो इस ब्लॉक की मास क्या होगी भी हम यही हम लोग को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ओके, लेट अस सी द सॉल्यूशन। Kinetic energy is equal to 1 joule, height of the block यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ है। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, ये हमारा जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सो पुटिंग दीज वैल्यूज, u जो है हम लोगों को फाइंड आउट करना है और g की वैल्यू वी नो दैट
-9.8 क्योंकि हम लोग बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। u स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 4.42 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा बॉल का ब्लॉक का इनिशियली जो स्पीड है वो है, ठीक है, 4.42 मीटर पर सेकेंड यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 1 जूल हम लोगों का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। 1/2 वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द ब्लॉक, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को मिलेगा 1/9.8 kg और इसको सॉल्व करने पे वी विल गेट 0.102 kg और इस kg को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे देन वी विल गेट 102 ग्राम। तो मास ऑफ द ब्लॉक विल बी 102 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ ब्लॉक मेरा मिल गया 102 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 12, अ साइकिल टुगेदर विद इट्स राइडर वेट 100 kg। एक साइकिल है उस पे जो राइडर उन दोनों का वेट जो है मिला करके कितना है 100 kg। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू सेट इट मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी अगर हम लोग 3 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं उस बाईसाइकिल की तो कितना वर्क डन होगा, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। मास ऑफ द बाईसाइकिल टुगेदर विद इट्स राइडर इज 100 kg। रिक्वायर्ड वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी हम लोगों को लेकर के जाना, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। Again we will use the formula of kinetic energy, K is equal to 1/2 mv square. So putting all the values, mass मेरा 100 kg दिया, v square 3 into 3, we will get that the work done by that bicycle is 450 जूल। अगर वो 450 जूल वर्क डन करेगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो बाइसाइकिल जो है चलने लगेगी। Thus the work done is 450 जूल। If you have any problem related to any calculation of this video, you can comment in the comment section. Like, share and subscribe to my channel. Thank you very much for watching.